I'll be sharing the screen in next 2 minutes, sir. Well, this is very important subject. Liver being everybody is little how they know about the liver. Nothing new. Basically, this is one of the largest organ after skin in our body. If you see, largest organ, skin the largest, but number two is the liver. Weighing around 1.5 kg, it's big, dark reddish brown colored gland. It is again very important to understand. Not only it is the organ, but it is a so-called gland also because it is associated with the all alimentary canal. मतलब हमारा जो digestive system है, जो मुंह से शुरू होके हमारे मुंह से होते हुए स्टमक, इंटेस्टाइन छोटा बड़ा, कोलॉन होते हुए रेक्टम निकलते हुए पूरा कैनाल जो है इसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, उससे अटैच कुछ ग्लैंड्स हैं which helps in our digestion process, and liver is one of the major big gland, so it is organ as well as it's a gland, very important. Purva, it is done. Yeah, now you all can see. uh, Now you can see now, first slide, Purva, before this, could you do that? Yes, sir. Yeah, just see, it is a very good picture of liver, which is healthy liver. You have to, I know, we being a few of us are medical people, they understand very quickly things and they understand better. But for general people also, it should be dark, reddish, brown colored and has got two lobes and divided in. Now, next slide, please, Prova. Now you can see this is something. You can see the cage. I will rotate my cursor on this. Can you see my cursor? This is a cage. जो हमारे ribs हैं, तो lower end के ribs में right side में upper part में this liver is lying here and extending towards even left side of cage. So it is an upper right hand portion of abdominal cavity. ये पूरा abdominal cavity के अंदर और diaphragm एक organ है उसके नीचे. Diaphragm के ऊपर lungs है, diaphragm है, उसके नीचे this liver lies on the above stomach. You can see this stomach here now, right? So this is placed anatomically just to understand कि हमारा liver कहाँ होता है. बहुत से लोग जो medical में नहीं है उनको समझने के लिए easy होगा. Next slide please. Now, being I said liver is a very important, organ and as well as gland. So we all should know why it is so important. Where does it help us in living healthy, better, and so on? So liver have a many functions. If I say functions of liver, it is more than 400, 500 functions to discuss. It will take a lot of hours and days to discuss only on liver if we talk. But I'm too young and small to discuss so much. But definitely few points which everybody would love to understand and know, which will help in their day-to-day life, I want to discuss now. So first and foremost function of liver is a bile secretion. Many people understand, must have heard also bile. So bile secretion is very important. Now, what is bile? Bile is produced and secreted by liver actually. And once it is secreted, beneath there is a small uh, bladder called gallbladder. It is stored in the gallbladder. And that bile consists of salts, phospholipids, cholesterols, electrolytes, bilirubin, and water. Now, understand the function. As I told you, alimentary canal means it helps in digestion process as a digestive gland. So even a small amount of fat in your body, when you eat something, when a small quantity of fat, when it touches your tongue and goes inside, immediately gallbladder releases a bile. Bile helps in digestion of fat. Approximately per day, 600 ml of bile is being produced by liver. And bile helps in breaking down the fats. See, fat requires special juices which can take care of, not all. And I'll tell you in ahead a few of my talks, like
Food comes from esophagus, stomach, and then it goes to small intestine. Now we have to understand something. Stomach is acidic medium, right? And intestine is alkaline medium. So bile helps in the changing the medium because bile is alkaline. Once it mixes, it causes alkaline medium. So bile helps in breaking down of fats, and bile salt, bile contains the bile salts, which removes the toxins. What happens due to many other reasons? Some toxins we consume, maybe knowingly, unknowingly, like we don't wash properly our hand, for example, nails. Even we come from outside somewhere and we suddenly we grab something, even small snacks itself, we just grab it. So there are reasons by which we may develop some uh, health issues. So this is what turn into toxins. So bile helps, bile salts removes those toxins. Now toxins are secreted into bile and eliminated into feces. Once it is bile got entangled and it is thrown out of feces. Now it is very important to understand if lack of bile salt can cause a lot of toxicity in body. So bile, which contains the bile salts, has got its own very important role to play. So bile secretion is very important, and just understand it changes the medium and helps in fat digestion. Okay. Now, second very important function of liver is deamination. Amination. Amino acids everybody know. So deamination. Deamination occurs when we eat or consume excess of protein through many other means, by food or other means. So liver can't store the protein. That is the important thing. Liver can't store proteins. So it has to be removed. So out of protein, amine group, which is to be removed. So what happens? Liver converts this amine group into ammonia, and then ammonia gets converted into urea, and urea which gets thrown out, expelled out as a urine. So you must have even many people when you go to loo, they get some kind of smell that is nothing but urea. So it is very important metabolic process. Remember, this is very important. Deamination is very important metabolic process. And what is thrown out through urine is metabolites. ये छोटे छोटे टर्म थोड़ा मेडिकल लगेंगे लेकिन समझने की कोशिश करो उसको. सो अमोनिया जो बहुत टॉक्सिक होता है उसको बॉडी में रखना नहीं चाहिए. अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक. इट कैनॉट बी केप्ट इन द बॉडी. तो लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत फास्ट एक्ट करता है खट से, कि उसको जैसे ही अमोनिया को कन्वर्ट किया यूरिया में और उसको यूरिन से निकाल देता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, दैट इज डीअमाइनेशन. नाउ डीअमाइनेशन के साथ साथ नेक्स्ट उसका जो रोल है प्ले करने के लिए, सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए, डी, ई, के. दे आर फैट सॉल्युबल वॉल्यूम, फैट सॉल्युबल vitamins, and B12. B12 everybody knows. So synthesis, liver synthesizes vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, and they are all fat soluble. B12 is water soluble, so that all get synthesized with help of liver. Now I'll little spend some more time here to discuss what is the importance of vitamin A, D, E, K, and B12. Of course, in the smaller lines, but we should know this. Now, bile secreted during digestion is essential for the absorbing these all vitamins, and bile production is compromised by liver damages. So, proper absorption of vitamins may affected. अगर हमारा bile प्रोडक्शन बराबर नहीं होगा तो इसका एब्सॉर्प्शन भी नहीं हो पाएगा. विटामिन ए क्यों चाहिए हमको? विटामिन ए सबको पता है, रेटिनॉल related to something with your eyes. Vitamin E is you refer to retinol. Retinol, it exhibits the biological activity of retinol, which is the main concern of vitamin A. Main form of vitamin are retinoic acid, retinol, and main liver stores the retinol palmitate. Means वो डायरेक्ट फॉर्म में नहीं होता है, जो स्टोर लिवर में स्टोर होता है, दैट इज रेटिनल palmitate. तो ये जो हमारा इंपॉर्टेंट विटामिन ए है जो फैट सोल्यूबल है, विच लिवर सिंथेसाइजेस एंड केप्ट फॉर.
Now, vitamin A is known for sight, vision. Everybody knows. So, what important role now liver is playing, we can all understand. विटामिन ए का ग्रोथ अगर इनहिबिट हुआ बिकॉज ऑफ ट्यूमर सेल, तो विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि दे ऑल्सो हेल्प इन इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर सेल्स. समटाइम्स वी come across tumor growth in some patients. So vitamin A is that also important to inhibit the growth of tumors. Now, one more very important role for vitamin A is the immune function. We all have a immunity, so they have very clear role of immune function. They help in night blindness, because everybody knows deficiency of vitamin A would lead to night blindness, यानी शाम के बाद अंधेरे में रात को दिखाई नहीं पड़ता है. So one of the cause is vitamin A deficiency. So liver plays that important role of synthesizing the vitamin A. Xerophthalmia. Xerophthalmia is nothing but आई मीन जो थालमिया मीन्स आंख, जिसके रिकरेंट इफेक्ट ये इन्फेक्शन होते रहते हैं. बिकॉज जेरोथैल्मिया मीन्स क्या कि ड्राइनेस ऑफ कंजंक्टिवा एंड कॉर्निया ऑफ आई. जो अपना आई बॉल है उसका सफेद और काला भाग, जो उसका रिकरेंट ड्राइनेस आजकल बहुत कॉमन है. आप देखेंगे कि स्पेशली पीपल दो स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद द कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, उसका जो लाइट है उसके कारण ड्राइनेस ऑफ आईज इज कमिंग अक्रॉस लॉट ऑफ केसेस. आजकल आप आंख के डॉक्टर्स को मिलेंगे जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं, उनसे आप पूछोगे तो आपको बहुत मिलेगा आई के ड्राइनेस के केसेस. सो बी cautious about that. So vitamin has another role to play and helping our eyes to keep healthy and rather dry. Again, inflammation of eyes, ridge formation which happens because of deficiency of vitamin A. So vitamin A is synthesized in liver. So many more functions can be taken care of. Vitamin D. Vitamin D, everybody knows, many of us are consuming everyday vitamin D, but we are so thankful to liver which synthesizes for us. So इसका डिफिशियंसी अगर हो जाए तो बच्चों में आप सुने रिकेट्स, एक छोटे बच्चों में विटामिन डी की डिफिशियंसी के कारण रिकेट्स होता है. हम बड़े लोगों में ऑस्टियोमलेशिया होता है, एवरीबॉडी नोज दैट. एंड जो विटामिन डी है उसका लो लेवल होने का दूसरा एक और चीज होता है कि इजीली बोन्स फ्रैक्चर होते हैं. तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं. इम्यून रिस्पॉन्स में विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है. आप सबको पता होगा, मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल कहीं का कहीं यूज कर रहा हूं. अभी कुछ समय पहले हम सभी ने, पूरे वर्ल्ड ने एक इन्फेक्शन को फेस किया है, उसका नाम है कोरोना. उस समय हम लोग जो सप्लीमेंट्स खाते थे, उस सप्लीमेंट में विटामिन डी हैड अ वेरी बिग रोल टू प्ले. सो अंडरस्टैंड कि इम्यून रिस्पॉन्स में भी कितना बड़ा इसका विटामिन डी का रोल है. सो it is important which liver synthesizes for us. Vitamin E, again fat soluble vitamin. It is a basically antioxidant metabolite. ये एंटीऑक्सीडेंट है और एक बहुत ही इसेंशियल डाइटरी फैक्टर है. इसका अपना रोल बहुत बड़ा है कैंसर प्रिवेंशन में, एंटीऑक्सीडेशन में, एंटी प्रोलिफरेशन. प्रोलिफरेशन मतलब कोई चीज का बढ़ना, जैसे ट्यूमर बढ़ेगा, कुछ अनवांटेड सेल्स बढ़ेंगे, जो इमेच्योर सेल्स शरीर में जो पेशी बोलते हैं, हमारे अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, तो वो सेल का प्रोलिफरेशन को रोकता है. इट इज एंटी, विटामिन ई हेल्प्स इन एंटी प्रोलिफरेशन, एंटी इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन मीन्स कोई भी जगह पे जहाँ पे लाल है, दर्द है, सूजन है, उसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं. इन्फ्लेमेशन एक्सटर्नली इंटरनली दोनों तरफ होता है. एक्सटर्नली भी आप देख सकते हो, एक इंजुरी लगी हुआ इन्फ्लेमेशन है जहाँ पे दर्द हो रहा है, पर अंदर से ही बहुत सारे इन्फ्लेमेशन लोगों को होते हैं. सो विटामिन ई has a lot of role to play for inflammation. So it is fat soluble vitamins, antioxidant है, antioxidation होती है उसके कारण, क्योंकि ऑक्सीडेशन रोग कम करता है, anti proliferation, anti inflammation. So very important vitamin. Again now another fat soluble one is vitamin K. Wow, vitamin K has a very significant role to play about the bleeding. किसी को भी चोट लग जाती है, मार लग जाती है, कहीं पे कोई गिर जाता है, इंजरी होता है, तो ब्लीडिंग चालू होता है. वो ब्लीडिंग अगर बहते रहे तो कुछ समय बाद इंसान जिंदा नहीं रहेगा. मगर मजे की बात क्या है, विटामिन के ये जो कोएगुलेटिंग फैक्टर में से एक है, जो क्लॉटिंग फैक्टर है, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि उस ब्लड को क्लॉट करता है.
राइट। इसका डेफिशिएंसी हुआ तो ब्लीडिंग बहुत हो जाएगा। फिर विटामिन के हेल्प्स इन बोन डेवलपमेंट आल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन के आल्सो हेल्प्स इन osteoporosis and there are few कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में भी विटामिन के का रोल बहुत बड़ा है। सो विटामिन के दो फैट soluble liver synthesis for us is very very important for us. Now water soluble vitamin B12, B12 और उसको folate बोलते हैं, which is causing folate deficiency anemia if it is not there and can cause wide range of symptoms. अगर B12 का डिफिशियंसी हमारे शरीर में रहा तो हमको एनीमिया भी होगी, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे सिम्टम्स एक्सपीरियंस करेंगे लोग। जिनको एनीमिया होगा उनको हमेशा हेडेक, इंडाइजेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, छाती में धड़कन, दर 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 दर, वो पाल्पिटेशन बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में उसको, मेडिकल लैंग्वेज में। फिर आंखों के विजन में भी उसका असर है, टायर्ड वीक फीलिंग होगा, डायरिया ऑफ एंड ऑन कभी कभी होगा, है ना। कभी ऐसा आप चलोगे तो थकान महसूस होगी और आपका ब्रीदिंग से जल्दी जल्दी होगा, उसको बोलते हैं रैपिड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो दिस इज द साइन ऑफ एनीमिया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ B12, which is very very significant in many cases we have seen. So liver helps us in synthesizing the B12 also. Understand the importance of liver function for us. Now liver also plays a major role of production of blood protein. There are different protein in our body. There are certain protein which are needed, which they play a lot of, I mean, important role in terms of regulating the blood volume, distribution of fluid in the body, like albumin, globulin, immunoglobulin, prothrombin. Prothrombin again is a clotting factor, and fibrinogen again clotting factor. So these all are nothing but blood proteins, which is being produced by the liver. Liver produces for us. So it has got another very very important dynamic role to play for us, which helps in living very healthy and happy life. Now लीवर प्लेस अनदर वेरी गुड इंपॉर्टेंट विच इज, हम उसको अपने कॉलेज के दिनों में कहते थे लीवर हमारा शरीर का शंकर भगवान है। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन, बट आई जस्ट वांट टू लाइक, जैसे शंकर भगवान जी को देखो, यहाँ कंठ पे वो बैंगनी कलर है क्योंकि उन्होंने विष पिया था, ऐसे कहते हैं ना। तो हमारा लीवर है ना, वो कांस्टेंट अटैक में रहता है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अंदर टॉक्सिन्स जाते रहते हैं। तो लीवर डज दोस डिटॉक्सिफिकेशन, मीन्स जो भी टॉक्सिन अंदर जाएगा किसी भी कारण से, चाहे फिकोरल मुंह, हाथ से, खाने से, या कोई पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में हो, बहुत से लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, टबैको खाते हैं, वो बहुत सीरियस चैलेंज है उसका। तो लीवर हेल्प्स डिटॉक्सिफिकेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ दोस एंडोजिनस और एक्सोजिनस, एंडोजिनस जो अंदर पैदा होते हैं और एक्सोजिनस जो बाहर से हमने अंदर लिया, उस हार्मफुल सब्सटेंस को डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम लीवर करता है। और लीवर का अपना एक खुद का एक सैनिक सिस्टम है, इसको फेगोसाइट्स बोलते हैं, कफर सेल्स, कफर सेल्स। ये कफर सेल्स होते हैं, उनके सैनिक हैं, वो उनको मारते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और वो बैक्टीरिया और भी कुछ अंदर गया तो उसको ही मारते हैं। तो रिमेंबर लीवर हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले एज ए डिटॉक्सिफिकेशन। टॉक्सिन्स कोई भी एंडोजिनस एक्सोजिनस कहीं से भी अंदर गया है तो लिवर के फेगोसाइटिक सिम्टम, फेगो मतलब जो बैक्टीरिया और गलत चीजों को कैप्चर करता है, मारता है उसको, तो उसके लिए स्पेशलाइज सेल हमारे लिवर के अंदर है, कफर सेल्स, जो उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसके डेब्रिज को बाद में इन्वेट करके फेंक देते हैं। लिवर हैज गॉट अनदर वेरी गुड रोल टू प्ले, इट सेपरेट्स न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। हम जब खाना खाते हैं, मैंने आपको बताया कि इट इज अ ग्लैंड विच इज एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम से इसका अटैचमेंट है। स्टमक से एसिडिक फूड चायम, जिसको चायम बोलते हैं, CHYME, जो नीचे आता है, जो बारीक पतला पतला होकर बोलस के नीचे आता है, तो उस समय क्या होता है कि जो लीवर के अंदर हमने आपको बताया था बाइल है, वो उसको ब्रेक डाउन करता है और उसमें से फैट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट टॉक्सिन है उसको बाइल यूरिन स्टूल के द्वारा बाहर निकाल देता है। So it has got a role to separate nutrients, जो चाहिए वो ले लिया, और जो नहीं चाहिए वेस्ट उसको बाहर फेंक दिया। That's very important. फिर बाइल मैंने आपको बताया भी, सेपरेट भी करता बताया कि इट प्रोड्यूसेस अल्कलाइन मीडियम, आप सबको मैं थोड़ी पहले बताया, क्योंकि खाना जो स्टमक से आता है वो एसिडिक होता है। तो ये इंपॉर्टेंट रोल है लीवर का, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पे बाद में डिओडिनम के बाद फूड अंदर जाएगा,
स्टमक का जो एंड है उस एंड से डिओडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड ज्वाइंट होगा, तो वहां पे जो मीडियम चालू होगा वो अल्कलाइन है। सो यहाँ पे क्या होता है कि बाइल उसको मिक्स करके पेनक्रेटिक एंजाइम उस पर काम कर सके, क्योंकि पेनक्रेटिक जो एंजाइम्स और डाइजेस्टिव प्रोसेस में काम करते हैं वो अल्कलाइन मीडियम में ही काम करते हैं, और स्टमक में एसिड है, इसीलिए यहाँ पे आपके लिए अल्कलाइन मीडियम पैदा करता है लीवर। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी गुड। प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, सभी लोग कोलेस्ट्रॉल को सुने और सबको कोलेस्ट्रॉल से बहुत डर लगता है, बट वी नीड कोलेस्ट्रॉल विद वेरियस रीजंस आल्सो। सो लीवर मेक्स कोलेस्ट्रॉल फॉर योर बॉडी नीड्स। कितने अजीब सी बात है, लोग कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल है। यू एवरीबॉडी हैज अ कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल। सो लीवर आपके लिए गुड कोलेस्ट्रॉल पैदा करता है, और वो ब्लड स्ट्रीम के द्वारा अपने पूरे शरीर में पहुंच जाता है, लाइपोप्रोटीन्स बोलते हैं उसको। और दो टाइप के लाइपोप्रोटीन्स जो हम लोग कभी कभी अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करते हैं, ब्लड का लिपिड प्रोफाइल बहुत जन ने टेस्ट किया होगा आज तक। तो एक होता है एलडीएल जिसको बोलते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और दूसरा होता है एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एक लिमिट में रहना चाहिए, उसके ऊपर नहीं आना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। एचडीएल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं, हाई डेंसिटी है, ये ज्यादा होना चाहिए। तो लीवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि इसको रेगुलेट करने में सॉरी ये बड़ा रोल प्ले करता है। तो जब लिवर कोलेस्ट्रॉल को पैदा करता है तो ये वहां से अपने बॉडी के सेल्स को जो आसपास है उसको वहां पे भेजता है, और बाद में दूसरा भी काम करता है, जो कोलेस्ट्रॉल वो नहीं चाहिए उसको, उसको बाइल सॉल्ट्स कैप्चर करते हैं, मिक्स करते हैं, और उसको बाद में फीसियस स्टूल से बाहर निकाल देते हैं। सी द बाइल, आई एम स्टार्टेड विद द बाइल, व्हाट रोल बाइल इज प्लेइंग। सो गुड कोलेस्ट्रॉल को सेल्स को बॉडी में प्रोवाइड करता है, भेज देता है, और जो नहीं चाहिए ऐसे जो हमारे कोलेस्ट्रॉल्स है उसको बाइल सॉल्ट मिक्स करके फीसियस से स्टूल से बाहर निकाल देता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट वन अनदर रोल टू प्ले, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। थैंक यू फॉर ग्लाइकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। याद रखिए एक चीज मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने पहले बताना चाहता हूं कि इट इज ऑल अबाउट द एनर्जी बैलेंस। हम खाते हैं तो एनर्जी डेवलप होती है, एनर्जी डेवलप हुई है वो यूज होना चाहिए। अगर एनर्जी यूज नहीं हुआ तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं जाके जमा होगा, किसी न किसी रूप में जाके जमा हो जाएगा। तो यही हम आपको जो बताने जा रहे हैं अभी, ग्लाइकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अभी जो हम खाते हैं तो उससे शुगर जो पैदा उसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, सब लोग जानते हैं बात को। जो खाया हमने, शुगर प्रोड्यूस हुआ, ग्लूकोज। अब वो ग्लूकोज जब बढ़ता है तो वो क्या करता है, लीवर उसको ग्लाइकोजन के रूप में अपने शरीर में, अपने ऑर्गन में जमा कर लेता है। तो ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ जस्ट सिंपल ग्लूकोज, ग्लाइकोजन हो। अब वो खाने से आया है तो उसका यूज भी क्या करते हैं, इसका यूज बेसिकली कहाँ पे, फ्यूल में होता है। जो हमको दिन भर हाथ पैर चलाना, काम करना, एक्सरसाइज करना, सोचना, उठना, बैठना, सोना, हर एक्टिविटी में थोड़ा फ्यूल लगेगा। वो फ्यूल जो ग्लूकोज के रूप में होता है वो स्टोर्ड हमारे ग्लाइकोजन के रूप में लिवर में होता है। अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज ब्लड में है तो वो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे लिवर में रहेगा। अभी इसमें प्रोसेस क्या है ग्लाइकोनियोजेनेसिस में, कि जब भी आपको उसकी जरूरत है एनर्जी की, तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस के द्वारा लिवर उसको आपको ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। और जब आपको जरूरत नहीं है तो वो सॉरी ग्लाइकोनियोजेनोलाइसिस, लाइसिस इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो जब आपको ग्लूकोज चाहिए होगा तो उसको ब्रेक डाउन करके आपके ब्लड में पहुंचा देगा, और इस तरह से आपके पूरे शरीर को थ्रू आउट द टाइम आपको एक एनर्जी, एक और जो न्यूट्रिएंट्स वो मिलते रहेंगे। लिवर इन्फेक्शन रेजिस्टेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इम्यून सिस्टम पे भी उनका काम करता है। तो देयर आर मेनी लिवर डिजीजेस, but liver has power to develop there, and it strengthens the immune system. Because of that, so many diseases are being controlled because immune system strengthening power is in liver. Clearing of bilirubin, that is known truth. Everybody knows that कभी ना कभी हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं और टेस्ट में बिलिरुबिन का भी रिपोर्ट आता है। तो ये इंपॉर्टेंट रोल है
इसका लिवर का कि बिलिरुबिन जमा नहीं होना चाहिए हमारे शरीर में। अगर वो जमा हो जाएगा तो इट रिजल्ट इन जॉन्डिस। जॉन्डिस इज नॉट ए डिजीज, मेनी पीपल गेट कंफ्यूज, जॉन्डिस हुआ है मेरे को। आपको जॉन्डिस नहीं हुआ, जॉन्डिस सिम्टम है जो आपका आंखों में, नाखून में, शरीर में पीला पीला दिखा है। तो बहुत लोगों को जमा होता है बिकॉज बिलिरुबिन बढ़ गया है, जो क्लियर नहीं हुआ, शरीर से बाहर नहीं गया है। तो किसी न किसी कारण से ब्लॉक होने के कारण अंदर लिवर के, मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ, वो ब्लॉक हो गया। तो वो ब्लॉक हुआ तो क्या होगा, ब्लड में आएगा, ब्लड में आएगा तो ब्लड से पूरे शरीर में घूमेगा। तो आंख है, चाहे नाखून है, चाहे आपके बाकी शरीर के, तो वो जॉन्डिस। स्पेशली आप देखेंगे जो न्यूनेट्स बच्चे जन्म जब पैदा होते हैं ना क्विकली, तो विद इन फर्स्ट वीक डॉक्टर एनपी सिंह, आपका आवाज नहीं। अच्छा अच्छा, उधर कोई बीच में बोला, मुझे भी लॉक कर दिया गया। फाइन फाइन। मैंने बिलिरुबिन के बारे में बोला, आप लोगों ने सुना शंकर जी? यस Yes, यस यस एनपी, एक्चुअली वो कोई और बात करने लगा विद यस यस यस, आई गॉट तो इट। एक्चुअली उसको म्यूट करने गए तो आप भी म्यूट हो गए हैं। आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। Doctor, I am from Calcutta. Can you talk after the meeting, please? Don't disturb right now, please. Please repeat. Part Don't disturb in the middle of the meeting, please. We Okay, cannot hear your bilirubin- voice. A very important voice. अच्छा, आप अभी बीच में ना बोलिए, मैं बोलता हूं, लेकिन प्लीज बीच में ना बोलिए। ओके, थैंक यू। सो बिलिरुबिन क्लियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल लेवल प्ले करता है। जो अगर ना निकले, क्लियरेंस ना हो, बिलिरुबिन जो बनते रहते हैं, आई मीन हीमोग्लोबिन का जो डिस्ट्रक्शन होता है, बिलिरुबिन बनता है, वो नहीं निकला तो क्या होगा, पूरे शरीर में जॉन्डिस बनेगा। जॉन्डिस सिम्टम है, डिस्कलरेशन है। और इवन न्यू बॉर्न बेबीज जो पैदा होते हैं, फर्स्ट सेकंड 2 वीक के अंदर देखा जाता है बच्चों के अंदर एक जॉन्डिस डिस्कलरेशन चालू होती है, पूरी बॉडी में दिखाई पड़ता है, जो बताता है कि अंदर बिलिरुबिन जमा है, उसको क्लियर करना होगा। तो लिवर हेल्प्स इन क्लियरिंग दोस बिलिरुबिन। नाउ फोर्थ, नेक्स्ट स्लाइड। Purva, can you play next slide, please? Yes, sir. The slide has been played. Okay, Can thank you see you. it? Thank you. So next slide is fourth is liver illnesses. So there are many more diseases and illnesses. I won't be able to really cover all those, but let us talk something. The commonest infections, there are many infections we come across of liver. जैसे बहुत से लोग बहुत शराब पीते हैं, कुछ टॉक्सिन्स उनके पेट में गया, शराब, सिगरेट, तंबाकू, खाना पीना, बैड हैंड, क्लीनिंग नहीं हाथ का, और दूसरे रीजन है फैटी फूड, जंक फूड, ये सब जो खाते हैं, इससे क्या होता है, इन्फेक्शन शरीर में आता है, और वो एक मेडिकल कंडीशन बन जाती है बाद में। और कॉमनली नोन इज हेपेटाइटिस, एवरीबॉडी नोज। हेपेटाइटिस इज बेसिकली कॉज्ड बाय वायरसेस, and most commonest type of hepatitis are hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. They are very commonest. There are few more, but we will not discuss much because उसके कोई ट्रीटमेंट भी अभी नहीं है। And B, C ये बहुत ही जरा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, A को भी लेकिन B को भी। तो ये इन्फेक्शन होते हैं। दूसरा इलनेस आता है लिवर रिलेटेड ऑटोइम्यून। ऑटोइम्यून क्या है कि ऑटो मींस अपना, इम्यूनिटी सिस्टम, जब अपना सिस्टम मिस्टेकन हो जाता है, गलत, उसको समझ भी नहीं आता है किसी कारण से, वो लिवर को अटैक करता है। मींस अपने इम्यून सिस्टम जो बॉडी में है, वो लिवर को ही खुद अटैक करता है। वो लिवर को अटैक करने के लिए नहीं है, हमारे शरीर को हमको प्रोटेक्ट करने के लिए है, लेकिन वो किसी कारण से वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, अलग चैप्टर है पूरा ऑल टुगेदर, जो कोई लर्नेड पर्सन इसको बारे में बताएंगे कभी आपको आगे। तो वो लिवर को अटैक करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लिवर के ऑटोइम्यून डिसीज चल रहते हैं, और इसमें कॉमनली जो देखा गया है, जो प्राइमरी, उसको बोलते हैं बिलियरी कोलेंजाइटिस एंड ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। यानी हेपेटाइटिस का एक कारण और भी है जो ऑटोइम्यून रीजन से है। फिर और भी देखा गया डिजीजेस कुछ जो इनहेरिटेड होते हैं, लिवर डिजीज बिकॉज ऑफ जेनेटिक कंडीशंस। इसमें कॉमनली विल्सन डिजीज करके है, मैं इसके बारे में डिजीज आपको ज्यादा बताना नहीं चाहता हूँ, खाली एक एग्जांपल देता हूँ। और भी डिजीज होते हैं जेनेटिक रीजन से, बट विल्सन इज वेरी नोन। इट इज जस्ट नथिंग बट एक्युमुलेशन ऑफ कॉपर इन लिवर, हाई क्वांटिटी में कॉपर जो
मेटाबोलाइट होके निकल जाना चाहिए, तो जमा हो गया है, तो इट कॉजेज विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज के सिम्टम्स बहुत सारे इसमें कॉमन, वेरी नाइस। आई रिमेंबर माय एकेडमिक ईयर, जब मैं कॉलेज में था, पढ़ता था मेडिकल साइंस में, तो एक ऐसे पेशेंट आया था, तो जस्ट मैंने अचानक देखा किसी के आंख के स्क्लेरा में ये ब्राउन रिंग था, ऐसा ब्राउन रिंग, जो काला अपना गोल है उसके बाजू में गोल गोल ब्राउन रिंग था। और ब्राउन रिंग देखने के बाद मुझे नया कुछ लगा, अजीब सा। तो मैं मेरे जो हमारे सीनियर बॉस थे उनको बुलाया, बोला सर ये ब्राउन रिंग कैसे इतना ब्यूटीफुल आई से क्या? बोलता नहीं ये कुछ और है। तो हमको पता चला कि ये विल्सन डिसीज, आई नेवर फॉरगेट दिस। फिर अब नॉर्मल सेल मल्टीप्लिकेशन, ये ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट इलिसिस जो लीवर डिजीज में होते हैं। अब नॉर्मल सेल मल्टीप्लिकेशन इज सिंपल, जैसे कुछ सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं अब नॉर्मली, तो क्या बनेंगे? कैंसर, बिनाइन ट्यूमर्स। तो ये एक दूसरा कंडीशन भी लीवर डिजीज में देखा गया है। फिर टॉक्सिन्स, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अल्कोहल, टॉक्सिन्स के कारण भी लोग लिवर डिजीज से सिक होते हैं, मैं उसे बता रहा हूँ आपको। तो अल्कोहल है, कुछ फैटी फूड, जंक फूड, रेड मीट, वेरी इंपॉर्टेंट, आई वांट टू हाईलाइट दिस, रेड मीट एंड रेड प्रोसेस्ड मीट and processed food, unhealthy foods, they are very, very dangerous and toxins for liver to get sick. So please be careful. Definitely, we all live and we eat, but be cautious enough to understand क्या खाएं, कब खाएं, कितना खाएं. Now, you must have heard about the hypertension. Many of us know hypertension, सुना है, blood pressure, hypertension. So there is something called liver related also एक serious complication है, जिसको पोर्टल हाइपरटेंशन बोलते हैं, जो एक्चुअली शुरू में तो मालूम ही नहीं पड़ता, बाय द वे, जो लिवर का एडवांस कंडीशन डिजीज का होता है, यानी कुछ कारणों से लिवर पे बहुत सारे स्कार बनते हैं, जो मतलब उस ब्लड वेसल्स को अंदर, स्कार यानी डेड सेल्स ऑफ लिवर, यानी उसमें फैटी फैट्स जमा हो गए हैं, वहां के टिश्यू मर गए हैं, पैरेन्काइमल सेल्स मर गए हैं, तो जिसके कारण क्या होता है कि लिवर जो श्रिंक हो गया है, और श्रिंकेज के कारण उसके ब्लड वेसल्स क्या हो गया, अभी जो वहां से ब्लड लेके जाते थे, उसका ब्लड फ्लो कंस्ट्रिक्ट हो गया, रुक गया है, क्योंकि कॉम्प्रेस हो गया है। तो इसके कारण क्या होगा, अब आगे के जो ऑर्गन को ब्लड जाता है थ्रू आउट बॉडी, वो जाना बंद हो जाएगा, राइट? सो इट कॉजेस ए सीरियस इंटरनल ब्लीडिंग, इनसाइड द ब्लीडिंग, और दूसरे बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। तो इट इज बिकॉज पोर्टल हाइपरटेंशन। हम लोगों ने आज तक कार्डियक हाइपरटेंशन सुना है, दूसरे हाइपरटेंशन सुना है, सर्कुलरी सिस्टम के कारण हाइपरटेंशन सुना है, रीनल भी, किडनी का भी होता है, लेकिन पोर्टल हाइपरटेंशन बिकॉज ऑफ लिवर डिसफंक्शन। ओके, नाउ अल्कोहलिक लिवर, वेरी कॉमनली जब भी लिवर की बात आती है, सभी लोग क्विकली उनके दिमाग में आता है दारू पिया तो लिवर खराब होगा। और हम लोग बचपन में एक रेडियो पे एड सुनते थे, डॉक्टर माझा पोट दुखतोय, कुठे? इथे, कुठे? इथे, जोर से चिल्लाता था। अगर आपने देखा सुना होगा, याद होगा। तो दिस इज नथिंग बट अल्कोहलिक लिवर। तो उसके बाद मराठी में एक सेंटेंस था कि दारू तुम्हारे जीवन का नाशक है, सब है। आप देखो, आप डॉक्टर के पास कभी क्लिनिक में आते हैं तो आपको डॉक्टर एग्जामिनेशन टेबल सुलाता है, और आपके राइट साइड रिब के नीचे, पेट अपर अब्डोमेन में, रिब्स के थोड़ा नीचे आपको सांस जोर से लेने के लिए बोलेगा, और धीरे से अपने आगे की फैलेंज उंगलियों को, राइट हैंड की उंगलियों से धीरे से अंदर प्रेस करके टच करना चाहेगा। तो कुछ कारणों से जो लोग अल्कोहलिक होते हैं, या नॉन अल्कोहलिक केसेस में भी इवन, वो लीवर बड़ा हो जाता है साइज में। जब आप सांस लेते हैं जोर से, तो लीवर नीचे पुश होता है, तो वो हाथ डॉक्टर लगाया उसको वहां पे मिलता है। तो इवन ड्रिंकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, दिस ऑल्सो बिल्ड अ फैट इन लीवर, जो लीवर के अंदर फैट डेवलप हो जाता है, उसको फैटी लीवर बोलते हैं, अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। अभी फैटी लिवर डिजीज बहुत कॉमन सिम्टम्स क्या है कि वहां पेन होगा, उल्टी होगी, फीवर आएगा, बहुत पेनफुल है, आई मीन इट इज वेरी डेंजरस। तो बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज पे इसको बोलते हैं सिरोसिस ऑफ लिवर, विच इज वेरी डेंजरस, which may culminate in cancer and death even. So be careful. There are certain metabolic disorders. उस कंडीशन में क्या होता है, लिवर, कुछ क्रोनिक लिवर के डिजीज पैदा हो गए, जिसमें मैंने अभी डिस्कस किया। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में सिरोसिस ऑफ लिवर, कैंसर, और बहुत कॉमन जो हेरिडिटरी से आता है, जो मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस, ये बड़ी बड़ी चीजें, इसके बारे में हम लोग ज्यादा बात नहीं करें। विल्सन डिजीज मैंने बता दिया, और अल्फा आई एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी
ATD इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं हम लोग। तो ये मैंने पढ़ा है, मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, थोड़ा मैं समझता है। आप इसके बारे में ज्यादा खाली इतना याद रखिए, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। उसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में आप सब जानते हैं, हम लोग डायबिटीज की बात करते हैं, ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, इम्यून, ये सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ओबेसिटी की बात करते हैं, ये सभी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। क्योंकि हमारा शरीर का जो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुआ है, उसके कारण जो मेटाबॉलिज्म का फंक्शन होना चाहिए वो फंक्शन नहीं होता है। मेटाबोलाइट्स जो पैदा होते हैं वो एक्सक्रीट नहीं हो रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो रूप से बाहर आएगा, वो बीमारी के रूप में बाहर आएगा। दैट इज अनदर लिवर गोज विद द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। फिर देर आर सर्टेन कंडीशन प्रेगनेंसी ऑल्सो वेर इन लिवर गेट डिजीज्ड। ये बहुत ही आई मीन पेनफुल होता है, और स्पेशली महिलाओं को इसे गुजरना पड़ता है, स्पेशली प्रेगनेंसी महिलाओं के लिए। तो लिवर में प्रेगनेंसी में जैसे कि हाइपर इमेसिस ग्रेविडम बोलते हैं। हाइपर इमेसिस ग्रेविडम, हाइपर मतलब अधिक, इमेसिस मतलब उल्टी, ग्रेविडम जब प्रेगनेंसी है। तो उल्टी जो अभी कॉमनली बहुत सी महिलाओं को उल्टियां होती हैं प्रेगनेंसी में, स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स में, बट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ हाइपर इमेसिस ग्रेविडम। वो महिलाएं जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद में भी बार बार और बहुत ज्यादा उल्टी करती हैं, तो वहां डेफिनेटली मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है, और उसको कहते हैं हाइपर इमेसिस ग्रेविडम। दूसरा कंडीशन प्रेगनेंसी में देखा गया है इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस। इंट्रा मतलब अंदर, हेपेटिक मतलब लीवर, कोलेस्टेसिस मतलब बाइल का उसमें ब्लॉक हुआ है कहीं पे। और लास्ट अगेन जो उसका थोड़ा डिस्कशन कहीं कहीं पे होते गया है, एक्यूट फैटी लिवर प्रेगनेंसी, यानी लिवर में फैटी लिवर हो गया है किसी किसी कारण से, जिसके कारण वो बहुत डेंजरस है, तकलीफ है। और वन मोर कंडीशन जो लिवर डिजीज में वो देखा गया है और बहुत सी महिलाओं में देखा गया है, प्री एक्लाम्सिया। प्री एक्लाम्सिया रिलेटेड हैप्पी इम्यून। प्री एक्लाम्सिया कॉमनली नोन, पैर थोड़ा सूजेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ी रहेगी थोड़ी सी, तो ये सब देखना होगा। अभी ये सब क्या होता है कि इसमें प्लेटलेट लो हो जाएगा, लिवर के एंजाइम्स एलिवेट हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, जो एंजाइम्स वो बढ़ जाएंगे, हेमोलिसिस यानी ब्लड डिस्क्रेसिया, ब्लड ब्रेक डाउन होंगे। तो ये सब कंडीशन देखे गए हैं ऐसा। तो ये कुछ इलनेसेस मैंने आपको डिस्कस किया, और बहुत सारे, मैं लंबा लिस्ट लूंगा तो बहुत लंबा निकल जाएगा। आई वुड रिक्वेस्ट पूर्वा टू गो फॉर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज नाउ। This is very important. Everybody knows sign and symptom, which I have told you now in this talk, but still I'll resist some of the sign symptom of liver. जब भी liver affect होगा तो commonly कैसे पता चलेगा? Pain, very common symptom, pain. लिवर के राइट साइड जो अपर अपडाउन में, राइट अपर में है, उस एरिया में खासतौर पेन महसूस होगी। ब्रूजिंग इजीली, ब्रूजिंग मीन्स व्हाट, कि थोड़ा सा भी किसी भी कारण से ब्लड बाहर आएगा स्किन से, थोड़ा ब्रूज बोलते हैं ना, चोट, हम गिरते तो छिल जाता है ना, उसको ब्रूजिंग बोलते हैं। तो इजीली ब्रूजिंग होगा बहुत, क्योंकि लिवर अभी कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है। जॉन्डिस, जॉन्डिस का मैंने बताया, जॉन्डिस इज नॉट ए डिजीज, इट इज अ सिम्टम which is a discoloration, yellow discoloration of many part of our body, eyes, nails, skin and all. Okay, itching, liver disorder में शरीर में itching होगा, बहुत जगह पे itching, खुजला खुजला। उसको बहुत जन कंफ्यूज होते हैं शुरू शुरू में कि उनको कोई स्किन डिजीज हो गया है, बट इट इज बिकॉज ऑफ एक्चुअली बाइल्स, itching skin, loss of appetite, भूख नहीं लगेगी। लिवर के एलिमेंट्स में तकलीफ में, कोई इलनेस में भूख मर जाएगी, बहुत कॉमन है एकदम से लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ही नहीं है डॉक्टर को, है ना। उसमें वॉमिटिंग नाशिया बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, भूख भी नहीं लगेगी, एक तो खाना भी आदमी नहीं खाता है, और उसको स्मेल एंड साइट भी होगा, फूड का दिखाई पड़े तो भी उल्टी हो जाएगी, इतना उल्टी होता है। मतलब वो सहन शक्ति के बाहर की चीजें हैं। थकान रहेगी, पूरा दिन थका थका लो रहेगा, एनर्जी नहीं रहेगी। यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा, और स्टूल का भी कलर चेंज हो जाएगा। स्टूल व्हाइट इज थोड़ा क्ले कलर, या थोड़ा सा लाइट ब्लैकिश, ब्लैक नहीं रहेगा, उसको ग्रे कलर बोलेंगे, राइट, ग्रे कलर का स्टूल होगा। यूरिन भी थोड़ा व्हाइट रहेगी। तो ये सब चीज है ना, सिम्टम्स है, साइंस है। साइंस जो दिखता है, सिम्टम्स जो अंदर से बाहर आता है। तो स्वेलिंग भी पैर में, जो लोग स्पेशली अभी सिरोसिस ऑफ लिवर है तो उनके पैर में स्वेलिंग रहेगी, क्योंकि फ्लूइड अकोमुलेशन हो रहा है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट हुआ है। तो ये सब साइन सिम्टम्स जो बहुत कॉमन है। पूर्वा, कैन आई रिक्वेस्ट यू फॉर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ठीक है, हमने देखा फंक्शन, हमने देखा कुछ इलनेसेस,
कुछ साइन सिम्टम्स। अब हमको पता कैसे चलेगी भाई हमें हुआ क्या है? तो ब्लड टेस्ट हैं बहुत सारे जो आपके फिजिशियन, मैं जानबूझ के ब्लड टेस्ट का नाम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो, लेकिन आपको ब्लड टेस्ट आपके फिजिशियन से बात करके यूरिन टेस्ट करना चाहिए, जिसमें आपको उसके कुछ एंजाइम्स एलिवेट हो गए हैं, कुछ उसके फिगर्स चेंज हुए हैं, उससे आपको मालूम पड़ेगा। फिर दूसरा, अब्डोमेन का अल्ट्रासोनोग्राफी करना चाहिए। ऑफ कोर्स लिवर तो राइट अपर अब्डोमेन में है, लेकिन अब्डोमेन और अल्ट्रासोनोग्राफी, सोनोग्राफी बोलते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं, है ना, जो इमेजिंग करते हैं पेट में सुला के पैसा। आज साइंस एडवांस है, अभी कॉमनली लोग बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं एमआरआई पे, सिटी स्कैन पे, उसका जरूर हेल्प लीजिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और टेस्ट है, इमेजिंग से है, उसको ईआरसीपी बोलते हैं। ये पढ़ने को भी तकलीफ होते हैं, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोग्राफी, रेट्रोग्राफी, क्या क्या नाम है उसका, ऐसा कुछ है। एंड लास्ट, जब फिर कुछ भी समझ में नहीं आता तो डॉक्टर एडवाइस करता है, आपको बोलता है आप लिवर का बायोप्सी करेंगे। तो पहले ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट कर देखेंगे, उसमें कुछ मिला, उसके बाद आगे उसके उसी लाइन में आगे बढ़ेंगे, है ना। फिर सोनोग्राफी करेंगे, एमआरआई करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, ईआरसीपी करेंगे, और इफ रिक्वायर्ड दे मे गो फॉर इवन liver biopsy. Okay, next slide please. Right, again I recapping, फंक्शन देखे, इलनेसेस देखे, साइन सिम्टम्स देखे, और कुछ हमने डायग्नोस्टिक अप्रोच को समझा। अब हम फिर भी इसके अलावा हम सब लोग अच्छे हैं, हेल्दी हैं, तो ऐसा क्या करें जिससे कि हम कुछ प्रिवेंशन का ध्यान दें, कुछ केयर करें, जिससे हमको ऐसा कोई तकलीफ ना हो। तो याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, अवॉइड ट्रांस फैट फूड। ट्रांस फैट फूड यानी जो फैटी फूड में ट्रांस फैट होता है वो बहुत डेंजरस होता है, जो लीवर को बहुत मेहनत करना पड़ता है उसको मेटाबोलाइज करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करके निकालने में, और वो डिपॉजिट होता है। फिर देखो वो ऑर्गन थकेगा, थकेगा तो जमा, बोले बैठ भाई यहीं रह जा, कहीं मत जा, मेरे पास ही रहे। तो अवॉइड ट्रांस फैट फूड। हाई फ्रक्टोज, देयर आर टू थिंग्स, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। फ्रक्टोज हाई कंटेंट आपको फ्रूट्स में मिलेंगे, और फ्रक्टोज भी मिलते हैं उससे। तो फ्रूट्स भी खाना है, मॉडरेशन में खाना है, हमेशा याद रखिए। और स्पेशली कुछ फ्रूट्स में फ्रक्टोज की क्वांटिटी बहुत हाई होती है। तो इसका मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ फ्रूट नहीं खाना, मैं रोज फ्रूट खाता हूँ, मॉडरेशन में खाइए। और ध्यान दीजिए कि अगर आपका लीवर हेल्दी है तो आप बर्गर खा सकते हैं। रेड मीट फॉर नॉन वेजिटेरियंस, इट इज वेरी डेंजरस, बी कॉशियस, क्योंकि उसमें जो बाहर का उसका कवरिंग स्किन होता है, चर्बी बोलते हैं, वो बहुत थिक होता है, वो बहुत बड़ा फैट होता है, जो लिवर को बहुत अगेन मेहनत करना पड़ता है उसको मेटाबोलाइज करने में। सो अवॉइड रेड मीट। फिर वी ऑल आर मैच्योर्ड इनफ, बट समटाइम पीपल फॉल प्रे टू, दे गो फॉर अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मल्टीपल पार्टनर से सेक्स बिहेवियर उनका होता है कुछ बाय चांस। सो इट इज वेरी डेंजरस, बिकॉज लोग कार्डियक डिजीज के बारे में बहुत कंसर्न है, और दूसरे बीमारी में बहुत कंसर्न है, उनको पता नहीं कि लिवर कितना डेंजरस है। आज भी हमारे देश में एक मेजर बहुत बड़ा चंक है जो लिवर डिजीज के कारण उनकी मौत होती है। मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं, मैं बता रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो प्लीज अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्स। नेवर शेयर पर्सनल हाइजीन आइटम, ये बहुत कॉमन हंसने वाली बात है। नेवर शेयर पर्सनल हाइजीन आइटम्स, लाइक जेंटलमैन, घर में एक शेविंग ब्लेड है, घर के बाकी लोगों ने भी उसको यूज कर लिया। अब किसी एक को बाई चांस हेपेटाइटिस या कोई ऐसा तकलीफ होगी, वो दूसरे को दे देगा, क्योंकि माइक्रो लेवल पे भी ब्लड अगर चला गया और टच इन्फेक्टेड ब्लड, तो तकलीफ में आ सकता है। सो इवन नेल क्लिपिंग, जो हम लोग नेल क्लिपिंग करते हैं ना, नेल क्लिपिंग, वो मशीन जो छोटा होता है नेल दबा करते हैं, वो भी शेयर नहीं करना चाहिए, या शेयर किया तो उसको प्रॉपरली वॉश करके डिसइंफेक्ट करके यूज करना चाहिए। जो लोग कभी कभी शराब या रोज पीते हैं उनको लिमिट करना होगा या तो अवॉइड करना होगा, बहुत जरूरी है, बिकॉज लीवर हैज टू वर्क लॉट ऑफ work to metabolize this toxins. So this please avoid or limit. And again, there are certain drugs, very important and very amazing, हंसने लायक बात मैं बताने जा रहा हूँ, एसिटामिनोफेन, जो कॉमनली नोन आप सब होता है पैरासिटामोल। हम लोग कुछ भी हुआ एक पैरासिटामोल खा लेते हैं धड़क से। अभी कोरोना के काल में डोलो वाज फादर ऑफ फैमिली, सबके घर में डोलो ला ला के रखा था, कोई डोलो खिलाओ, डोलो खिलाओ, डोलो खिलाओ। नो, without doctor's advice, without knowing your proper health, please take care, because paracetamol is also hepatotoxic. Hepato मतलब liver toxic toxins, bad chemicals. So be careful with the drugs. And drugs के बारे में एक और बताऊं, जो भी मेडिकेशन डॉक्टर आपको देते हैं उसको सही समय पे लो,
सही मात्रा में लो, जितना बोला उतना लो। हम लोग कभी कभी खुद से मन से भी कुछ दवा का ऊपर नीचे कर देते हैं, या मन में कुछ दवा लास्ट टाइम डॉक्टर ने दिया तो वो भी लेके खा लेते हैं। बट डोंट फॉरगेट, मेनी ड्रग्स आर हिपेटोटॉक्सिक, लीवर को डैमेज करते हैं वो। तो बी केयरफुल। मेरे भाई का सिर दर्द हुआ था, मैंने वो गोली मैंने भी खा ली। नॉट ट्रू, डोंट डू दैट। उसको फीवर आया तो हमने टैबलेट दिया, फीवर ही चला गया। आज मेरे को फीवर है, मैंने भी खा लिया, ऐसा नहीं कर सकते आप। So be careful while using drugs also, hepatotoxic drugs. Okay. Now, what care you can take to keep your liver healthy and long lasting and you live better healthy? First of all, जो हमारा blessing हमारे लाइफ में, जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग आज यहाँ बैठे बातें कर रहे हैं, because of Amway opportunity and our system and our upline mentors, हमको हमेशा बताया है कि 4 pillars, follow 4 pillars। लिवर क्या, शरीर का बाल से लेके पैर का नाखून, सब चीज हेल्दी रहेगा। 4 पिलर्स, उसमें मैंने अभी यहां मेंशन किया, एक्सरसाइज रेगुलरली। नाउ व्हाई टू एक्सरसाइज? लिवर का एक्सरसाइज से क्या संबंध है? सी, हम कुछ भी खाते हैं तो बॉडी में ग्लूकोज बिल्टअप होगा। तो इट इज अबाउट द एनर्जी बैलेंस, कितना स्टोर हो, कितना यूज हो जाए, खत्म हो जाए। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, वो लिवर में स्टोर्ड होगा, जमा होगा, क्योंकि वो निकला नहीं यहां से। या विनीता इज शोइंग मी टाइमिंग, सो सर आई हैव 5-10 मिनट्स मोर। Yes, please go ahead. थैंक यू। सो हाँ, रेगुलर एक्सरसाइज, तो इट इज ऑल अबाउट नोइंग अबाउट द एनर्जी बैलेंस। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, वॉक, जॉग, साइकिल, स्विमिंग, एरोबिक, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, ट्रेनिंग एक्सरसाइज, वेट एक्सरसाइज, जो भी आप करते हैं एक्सरसाइज, ये सभी एक्सरसाइज में क्या होता है, आपका ग्लूकोज का लेवल यूज होता है, जो लिवर में स्टोर्ड ग्लाइकोजन के रूप में तो ग्लूकोज के रूप में बाहर आता है, जिसको मैंने बताया ग्लाइकोनियोजेनेसिस, वो प्रोसेस द्वारा आप उसको यूज, सॉरी, जो स्टोर्ड ग्लूकोज है वो स्टोर्ड होता है, वो ग्लाइकोजेनेसिस, और जो स्टोर्ड है वो बाहर आता है, ग्लूकोजिनोलाइसिस, तो आता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज में बर्न होता है। इट इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग योर एनर्जी, ग्लूकोज। सो एक्सरसाइज वेरी कॉमन, बचपन से माता पिता ने बताया, हमने सबने किया है। वॉश योर हैंड्स वेरी रेगुलरली, एंड वॉशिंग विद द वाटर इज नॉट सफिशिएंट, वॉशिंग विद द सोप, एंड वी हैव गॉट ब्यूटीफुल सोप विद द मॉइस्चराइजर इन, क्योंकि बार बार हाथ धोने से भी हाथ में ड्राइनेस आता है। इसलिए हमारा जो अपने बिजनेस का प्रोडक्ट है, हमारा बॉडी हैंड वॉश, वो बहुत ही सुंदर है, इसके अंदर मॉइस्चराइजर भी है, वो भी जरूरी है साथ साथ में। तो वॉश योर हैंड विद द सोप, स्पेशली बिफोर ईटिंग एनीथिंग। कोई भी चीज, खाने की चीज जो आपका संबंध हाथ से मुंह तक लाने वाला है और वहां से कोई टॉक्सिन अंदर जाने का चांसेस है, प्लीज 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 बी केयरफुल, अवॉइड डायरेक्ट यूजिंग योर हैंड, प्लीज वॉश योर हैंड रेगुलरली। हमेशा किसी भी कारण से याद रखिए, मेडिकल कंडीशन में कभी आपको नीडल्स की जरूरत पड़ती है, आस्क फॉर डिस्पोजेबल्स। नेवर यूज सिरिंजेस एंड नीडल्स, नेवर एवर नेवर नेवर। हमेशा अपने खाने में फाइबर की क्वांटिटी बढ़ाओ। फाइबर हमारे पास, ये भी ब्लेसिंग है जिसके बारे में थोड़ा सा आगे बताऊंगा मैं। फाइबर हमारे पास है, तो खाना खाने के पहले हम दोपहर शाम को 2 बार एटलीस्ट फाइबर को पानी में डाल के पियेंगे, एक, प्लस वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, दे ऑल्सो, बहुत सारे फाइबर्स उसमें होते हैं, होल फ्रूट्स में, होल ग्रेन्स में फाइबर्स होते हैं। तो आप फाइबर का इंटेक बढ़ा दीजिए, जो भी सोर्सेज अब आपके पास अवेलेबल है। रूटीन मेडिकल चेकअप करना बुद्धिमानी, कभी कभी स्पेशली व्हेन यू आर चेंजिंग सेकंड थर्ड पार्ट ऑफ लाइफ, तो एक बार देख लेना चाहिए भाई मैं कैसा ठीक ठाक चल रहा हूँ। एंड ईट नेसेसरी supplements. I don't want to teach you right now at this slide. We all are learned about the supplements, because supplements has got lot of role to play, जिसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। और most important ये है कि nutrition is another your protective leader in the body. न्यूट्रिशन के माध्यम से जो विटामिन, जो मिनरल्स, जो प्रोटीन्स, ये सब जो है आपके सैनिक हैं, आपके शरीर में आएंगे। So it will help, and there are few supplements which predominantly take care of your liver. Next slide, Purva ji. Diet and supplement. वही 4 पिलर्स, बेसिक 4 पिलर का डाइट, एक्सरसाइज में होता है। डाइट अच्छा बैलेंस डाइट हो, आपका समय, 2 चीजों ध्यान देना चाहिए डाइट में। समय का पाबंदी, कि किस रूटीन टाइम पे बराबर आप खाना खाते हैं। अपने बॉडी क्लॉक
को आदत लगाओ कि ये टाइम में मैं खाना खाऊंगा, तो अपने आप उस समय न बल्कि लिवर, बाकी शरीर के और भी एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूसेस उसमें बाहर आएंगे। हम अब्रप्टली कभी भी खाते तो बॉडी कंफ्यूज हो जाती है। सो एक तो बैलेंस डाइट खाइए, टाइम पे खाइए, और अच्छा खाना खाइए, प्रॉपर खाना खाइए, वेजिटेबल्स को बढ़ाइए ज्यादा, लीन प्रोटीन खाइए, है ना, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स को ज्यादा यूज करिए, फ्रेश फ्रूट्स जैसे एप्पल है, ग्रेप्स है, सिट्रस में जैसे ऑरेंजेस है ना, संतरा मौसम्बी जिसको बोलते हैं हम लोग, वो सब खाइए, और सभी प्रकार के बेरीज। अभी यहाँ पे हम बार बार सब जगह बेरीज मिलता होगा, नहीं मिलता, लेकिन दे आर वेरी वेरी हेल्दी फ्रूट फॉर लिवर, स्पेशली raspberry, this berry, cranberry, and many more berries. Even I have a limited information about the berries, but they are very very important because they contain rich vitamin C. Grape, citrus fruits also contains a lot of vitamin C. Apple also contains vitamin C. So we need fresh fruits, right? Vegetables, especially all vegetables are required. First of all, you don't exclude anything, but unless there is a one condition, so you have to exclude. Otherwise, we all as a healthy person eat all vegetables, but be concentrate for liver, especially if you want a liver people having some problem. Cruciferous vegetables. What is cruciferous vegetables? क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स मीन्स लाइक, अभी हम लोग आजकल ब्रोकोली खाने का बहुत अच्छा नया सीजन चालू हुआ है, कॉलीफ्लावर खाते हैं, स्पिनच खाते हैं, है ना, केल खाते, तो ये जो वेजिटेबल्स हैं बहुत अच्छे वेजिटेबल्स हैं। बीट है, बीट यू नो, बीट जो डार्क रेडिश कलर का, उसका जूस पियो, बहुत जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे लिवर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है वो। तो आप क्रूसीफेरस, ग्रीन टी का बहुत बड़ा रोल है, ग्रीन टी आप पी सकते हैं, ऑथेंटिक ग्रीन टी को सोर्स करिए। मैंने बताया लीन प्रोटीन खाइए, रिच प्रोटीन जो बाकी रेड मीट से मिलता है वो ना लीजिए, मगर लीन प्रोटीन से लीजिए, ओके। एंड वेजिटेबल सोर्स है प्रोटीन के, नॉनवेज सोर्स भी है, एग्स में लीन प्रोटीन मिलता है, चिकन में मिल जाता है, वेजिटेरियन में तो बहुत सारे वेज के सोर्स भी हैं, लीन प्रोटीन लीजिए। ऑफ कोर्स वी नीड एंटीऑक्सीडेंट्स to take care of health, liver, superfoods. Superfoods everybody knows, haldi, curcumin, everybody knows, हमारा प्रोडक्ट भी, साथ में जिंजर है, हाँ, आप जिंजर का भी इस्तेमाल करिए, सुपर फूड है। फिर लहसुन जो बोलते हैं हम लोग, लहसुन खाइए, बीट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, बीट का जूस या बीट खाइए खाने में सलाद के तौर पे, अनलेस यू हैव सम चैलेंज विद सर्टेन फूड आइटम। सो एंटीऑक्सीडेंट सुपर फूड्स का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा रहेगा। And of course, again, I repeat, supplements. Next slide, please. Now, I'm coming to supplements because मैंने 2 बार आपको supplements बताया। तो कुछ हमारे friends मैं जानता है यहाँ पे पहली बार आए हैं, and I want to guide them certain supplements, but I won't be able to in this shortest time of 4 minutes able to give you all detail of supplements. But हमारे पास जो supplements available हमारे टीम के द्वारा, हमारे लीडर्स द्वारा आपको आपके liver health को सपोर्ट करने में जो मिलेगी, मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। ये प्रीडोमिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट मिल्क थिसल प्लस, ये एंटीऑक्सीडेंट्स है, डेराइव फ्रॉम मिल्क थिसल सीड्स, और इसका मेन क्या काम है कि ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेस जो होता है ना उसको प्रिवेंट करता है और फ्री रेडिकल्स को मारता है। मिल्क थिसल एक प्रूवन टॉक्सिफायर है, यानी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में करता है। नेक्स्ट, पूर्वा, फाइबर, इसका जिक्र थोड़ी देर पहले मैंने किया था, क्योंकि फाइबर का काम क्या है, वो जो हम खाते हैं ग्लूकोज या कोलेस्ट्रॉल, इस सबको बाइंड करता है, बांध करके स्लोली रिलीज करता है। नहीं तो होता क्या है, अगर हमारे खाने में फाइबर कम हो, हम खाना खाते हैं तो फट से क्या होता है कि वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जल्दी से पहुंच जाता है, शूट करता है, तो शूट जल्दी नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको क्या करना है, हमको फाइबर ऐड करना है जो उसको स्लो डाउन करता है, फिर हमारे गट हेल्थ को भी स्टिमुलेट करता है और हेल्दी रखता है, जहाँ पे माइक्रोबियम है बहुत बड़ा, बहुत सारे गुड बैक्टीरिया से उसको भी बढ़ाता है आगे। रिड्यूसेस द डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड इंजुरी। इन्फ्लेमेशन अनेक मैं टॉक्सिन्स के बारे में आपको थोड़ा बताया, और दूसरे बहुत से कारण है अनहाइजीनिक रीजन के कारण इन्फ्लेमेशन, हमारे इंटरनल इन्फ्लेमेशन खाली बाहर नहीं, मैंने एंडोजेनस एक्सोजेनस दोनों बताया था, तो इन्फ्लेमेशन को भी कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल फाइबर का है। नेक्स्ट, विटामिन सी चेरी प्लस हमारा ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है। मैं आगे लीवर के बारे में इसको कुछ बताऊं, मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि जीवन में अगर किसी को कुछ सप्लीमेंट्स चाहिए जिसके सहारे उसको पूरा जिंदगी जीना चाहिए, उसमें से एक विटामिन सी है। ऑफ कोर्स देयर आर फ्यू मोर,
but vitamin C is predominantly very important. ये hero product है, सब जगह काम आता है. So it helps fat accumulation. मैंने आपको थोड़े पहले cirrhosis of liver बताया, fat accumulation और बताया. तो ये जो हम खाना ना खाते हैं, जंक फूड, ये वो बहुत सारी चीजें ऐसा होती है जिसके कारण वो लीवर में जाके जो वो इमल्सिफाई नहीं होता है. इमल्सिफाई मीन्स जो फैट को डिसॉल्व करता है, तो वो क्या होता है, जमा होता है. तो विटामिन सी हेल्प इन प्रिवेंट फैट अक्यूमुलेशन. अगेन ये प्रोटेक्ट करता है टिश्यू डैमेज और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. ऑक्सीडेशन एक क्रिया आप सब हम जाते हैं, तो उसकी जो स्ट्रेस है, ऑक्सीडेशन की जो स्ट्रेस होती है, उसको भी प्रोटेक्ट करता है. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज. नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज है कि कॉमनली लोगों को पता है कि अल्कोहल पिया है, दारू पिया है, इसलिए फैटी लीवर डिजीज हुआ. सबको ये पता है कि दारू पीने से, अल्कोहल पीने से अल्कोहलिक लिवर डिजीज हुआ, सिरोसिस लिवर हुआ. बट देयर इज अनदर कंडीशन कॉल्ड पीपल दोज हु आर नॉट इवन कंज्यूमिंग अल्कोहल बट स्टिल दे गेट फैटी लिवर. उनके लिवर का सोनोग्राफी करें तो फैटी लिवर मिलेगा. दैट इज नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को ये प्रोटेक्ट करता है विटामिन सी. नेक्स्ट, अम्ला की, विविधता की, हरिता की. दिखता ऐसा है, बहुत जबरदस्त रामबाण है हमारे लीवर के लिए, क्योंकि ये नॉन हर्ब्स है जो डाइजेस्टिव फंक्शन और कोलन हेल्थ को सपोर्ट करता है, जिसका डायरेक्ट संबंध लीवर से आएगा. आपके एपेटाइट को अच्छा रखता है और डिटॉक्सिफिकेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है बॉडी सिस्टम में. नेक्स्ट, विटामिन डी. विटामिन डी के बारे में मैंने शुरुआत में बताया कि कोरोना के कॉल में सबको विटामिन डी की बहुत जबरदस्त समझदारी आई थी. तो ये बिलिरुबिन लेवल जो मैंने आपको बताया, बिलिरुबिन जो रिलीज होता है हेमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन के कारण, उसके लेवल को कंट्रोल करता है स्पेशली नियोनेट्स. नियोनेट्स में तो न्यूली बॉर्न बेबी, नियोनेट्स बोलते हैं इसको. और एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट इसके अंदर है. मतलब विटामिन डी इज ऑल्सो हैविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ एंटी इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन के बारे में मैंने बताया. अमंग द मैक्रोफेजेस एक्टिवेट्स, रेगुलेट्स इननेट. इननेट मतलब जन्म जन्मात. एक्टिवेट्स, रेगुलेट्स इननेट एडेप्टिव इम्यूनिटी इन लिवर डिजीज. जन इननेट का मतलब जन्म से, पैदाइशी, जन्मजात, शुरू से. तो उसके अंदर जो इम्यूनिटी है लिवर डिजीज के अंदर, जो प्रोटेक्ट करेगा, उसको एक्टिवेट करता है विटामिन डी. नेक्स्ट, yeah, this is something very very important. Again, all plant protein powder. Protein first, pro means first, teen substance, so first substance. So everybody knows this is important. हेल्दी रिपेयर के लिए, लीवर डैमेज हुआ है तो उसको रिपेयर पर करना पड़ेगा. थोड़ा कहीं कहीं बुक्स में आपको पढ़ने मिलेगा कि लीवर डिजीज में प्रोटीन नहीं खाना चाहिए. पहले हमारे बुक्स में बोलते थे, बट अब ऑफ लेट धीरे 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 साइंस चेंज हुआ है, क्योंकि जो लोग लिवर से सिक है बाई चांस, तो उनके वैसे भी न्यूट्रिशन मार जाती है. उनके शरीर में बहुत सारी चीजों का, इम्यूनिटी का, सबका प्रॉब्लम रहता है. तो प्रोटीन सपोर्ट्स दैट. इट अगेन प्रिवेंट्स द फैटी बिल्टअप. जो फैटी लिवर के आसपास फैटी जमा होता है, उसको भी रोकता है और लिवर सेल्स को डैमेज होने से बचाता है और नए नए सेल्स प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट प्लीज. ऑल राइट, सो आई थिंक आई एम डन. इज इट पूर्वा? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. I must thank my